Hello dear students, how are you? You are welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today we will discuss a chapter from 9th class and the name of the chapter is The Bond of Love, written by Nith Anderson. As you seen on the board, the title of our chapter, The Bond of Love, means प्यार का संबंध. Here in this chapter, the writer describes the story of a bear. यहाँ पे इस चैप्टर में जो हमारा ऑथर है वो एक बियर है, उसकी कहानी के बारे में बता रहा है और कैसे there was a beautiful relationship between his wife and the bear. कैसे उनके बीच अच्छा प्यार का संबंध बन गया. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि people means human beings love each other, but in this chapter the writer describes the love of an animal, here the bear. एक भालू का जो प्यार है अपने ऑनर के प्रति, अपने मालिक के प्रति, टू द मास्टर, तो वो चीज़ यहाँ पे हमारा ऑथर दर्शा रहा है. यहाँ पे तो जो यहाँ पे है वो स्लॉथ बियर, द चैप्टर अबाउट स्लॉथ बियर. तो स्लॉथ बियर के बारे में है, बड़े बालों वाला भालू. एंड दीज टाइप्स ऑफ स्लॉथ बियर आर फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन इंडिया. ट्रॉपिकल forest in India. They have long hair, means big hair, and long muzzles. तो बड़ी उनकी नाक होती है. तो इस प्रकार से स्लॉथ बियर यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इंडिया में पाए जाते हैं. तो जो राइटर है he describes in the chapter that 2 years earlier, 2 साल पहले, 2 years earlier, he went to मैसूर. तो मैसूर गया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड they were chasing the wild pigs from sugarcane field. They were chasing wild pigs. तो wild pigs को वहाँ से वो चेज कर रहे थे. तो at that very time most of the wild pigs were shot dead, others were escaped from there. And when after some time they thought that everything was finished, a sloth bear came there. Panting in the hot sun. तो हाँफते हुए वहाँ पे आता है. The author did not want to shoot the sloth bear without any reason, but his friend shot the sloth bear, and that sloth bear died on the spot. तो उसी जगह पर वो मर जाता है. And when they reached there, they found that it was a mother bear. तो वो मादा भालू थी. And a baby was on her back. उसकी पीठ के ऊपर एक बेबी था. And after when she died, the baby fell down from its body. And that baby was producing pitiful sound. And when they were trying to catch, he ran into the sugarcane field. And after a long time, they caught the baby bear. वहाँ पर उसने जो ऑथर है उसने उसको पकड़ लिया. And after came back from there to Bangalore. तो बेंगलोर आप वापस आने के बाद he presented
the baby bear to his wife. Baby bear, तो बेबी बियर को उसने प्रेजेंट किया अपनी वाइफ को, प्रेजेंटेड हिज वाइफ। तो अपनी वाइफ को प्रेजेंट करने के बाद हिज वाइफ वॉज वेरी मच हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हुई। एंड व्हेन शी फाउंड दैट द बेबी बियर वॉज अ मेल, the cub was a male, the wife of the author named him as Bruno। तो उसने उसका नाम ब्रूनो रख दिया। And within a short period of time, the baby Bruno, the baby cub, started eating everything and she started drinking milk with the help of bottle। बोतल के साथ वो वहाँ पे पीने लग जाता है मिल्क को। और and here the writer describes he drink and eat everything, means यहाँ पे जो बेबी कब था वो प्रत्येक चीज़ खा सकता था और पी सकता था। ही ईट pudding, cakes, sweets, pig meat, curry rice and everything else without thinking about the ingredients that had been used on those things। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे ले लेता था। and he also drink milk, wine, liquor, aerated water, lemon water। तो ये सारी चीज़ें वो लेता था। तो कुछ ही समय में that got accustomed to he started playing with Alsatian dogs and the children of the teenagers there। तो वहाँ पर जब वो छोटा था तो स्लॉथ बियर का बच्चा वहाँ पे बेबी कब, तो जो ब्रूनो था वो वहाँ पे एलिसेशन जो डॉग्स थे वहाँ पे ऑथर के पास, तो उनके साथ वो खेलता था। वहाँ पे जो किराएदार के बच्चे थे उनके साथ वो खेल सकता था बिकॉज ही वॉज लेस इन हाइट। तो उस समय वो थोड़ा छोटा था, when he was a baby cub। तो थोड़े समय के बाद आफ्टर सम टाइम एन एक्सीडेंट अकर्ड विद ब्रूनो, एक दुर्घटना वहाँ पे हो जाती है। द ऑथर हैड पुट बैरियम कार्बोनेट, a type of poison for killing rats। तो rats को for killing rats from library, rats को मारने के लिए from library, उनको मारने के लिए उसने बैरियम कार्बोनेट वहाँ पे रखा था। एंड ब्रूनो drink some of the बैरियम कार्बोनेट and he got paralyzed। तो उसको पैरालाइज हो जाता है वहाँ पर। द वाइफ इन्फॉर्म द ऑथर एंड दे टुक हिम टू द डॉक्टर। उसकी पत्नी ने उसको सूचित किया और वो उसको डॉक्टर के पास ले गए। एंड 20 cc एंटीडोट वर इंजेक्टेड इन हिज बॉडी। तो उसके 2 इंजेक्शन लगाए गए विषरोधी। एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 30 minutes, he started standing on his feet, otherwise he was gasping heavily। उससे पहले वो गैस्पिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा, गैस्पिंग heavily, could not breathe easily
वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, एंड ही वॉज मीटिंग, तो उसको उल्टियाँ भी हो रही थी, एंड ही वॉज नॉट टेकिंग ब्रीथ हैविली। तो उसके बाद जैसे ही उसको इंजेक्शन दिया गया तो 30 मिनट के बाद ही गॉट कॉन्शियस एंड ही कुड स्टैंड ऑन हिज फीट, तो अपने पैरों पर उसके बाद वो खड़ा हो गया। अनदर टाइम ही टुक सम ऑफ द ओल्ड ऑयल दैट वॉज ड्रेन फ्रॉम द ओल्ड कार, वहाँ से तो पुराने प्रकार का जो ऑयल है, he drank that oil, but that time it did not happen anything, तो इस प्रकार से कोई चीज़ नहीं हुई उसके साथ वहाँ पर। तो थोड़े टाइम के बाद जो ब्रूनो था he got young, तो थोड़ा सा और हेल्दी हो गया। तो वहाँ पर उसके बाद उसकी वाइफ ने ब्रूनो को she started calling Bruno as बाबा, तो उसको वो बाबा कहने लग जाती है। और अब जो बाबा है, when he got command, he took the gun with a stick, तो वो स्टिक को अपनी गन बना लेता था। and another stump, he took the stump and cradle as his baby whom he had hid अंडर द ग्रास, तो उस वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे उसने छुपा रखा होता था उसको अपने बेबी की तरह वो ट्रीट करता था। तो थोड़े टाइम के बाद जैसे वो ही वॉज ट्वाइस इन हाइट, अब वो जो हाइट थी उसकी, वो एलिसेशन डॉग थे वहाँ पर, उनसे भी कुछ ज़्यादा हो गई थी। और अब जो ऑथर था वो ये सोच रहा था दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू लिव हेयर द ब्रूनो इन द हाउस। तो यहाँ पर अब उसको ऑथर को और जो उसके बेटे थे वो सोच रहे थे दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेक बाबा हेयर इन द हाउस, कि यहाँ पर अब रखना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। एंड दे रिक्वेस्टेड हिज मदर एंड द ऑथर रिक्वेस्टेड हिज वाइफ दैट दे शुड गिव ब्रूनो टू द जू इन मैसूर, तो मैसूर में जो जू था वहाँ पर उसको दे दिया जाए। एंड विद इन टाइम द वाइफ ऑफ द ऑथर कंसेंटेड एंड द बाबा और द ब्रूनो वॉज टेकन टू द जू एट मैसूर इन अ केज, तो वहाँ पर उसको ले जाया गया। आफ्टर सम टाइम द वाइफ of the author get fretted and she was worried about Bruno. She did not eat anything for some days, कुछ दिनों तक तो वहाँ पर ऑथर की पत्नी ने कुछ खाया भी नहीं और उसके प्रति बेचैन थी। and all the time she was thinking about Bruno और the बाबा, तो उसके बारे में वो सोचती रहती थी। तो उसने वहाँ पे जो क्यूरेटर ऑफ द जू था, he also wrote some letter to the curator of the Jew, वहाँ पर भी उसने उसको लेटर लिखे about information about बाबा। तो वहाँ से उसको सूचना मिलती that बाबा is well but feeling fretted, तो वहाँ पर उसको बेचैनी महसूस होती थी। तो ये वहाँ से सूचना मिली, जो भी वहाँ पे उनके नॉन पर्सन थे वो मैसूर जाते थे तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती थी टू विजिट देयर इन द जू ऑफ मैसूर, तो वहाँ पर मैसूर में वहाँ पे विजिट करें, उनसे रिक्वेस्ट की जाती थी। और वहाँ पर वो जा कर के वो देखते हैं दैट बाबा इज़ वेल बट फीलिंग फ्रैटेड, तो उसको बेचैनी महसूस होती थी, वो अकेलापन महसूस कर रहा था। और कुछ समय के बाद जो वाइफ थी ऑथर की, उसने कह दिया दैट आई विल गो टू बाबा, कि मैं बाबा के पास जाऊंगी। तो जो ऑथर था उसको उसकी पत्नी को वहाँ पर ले जाना पड़ा मैसूर जू में। तो वहाँ पर जाकर के पहले तो जो उसके फ्रेंड थे दे वर थिंकिंग दैट बाबा वुड नॉट रिकॉग्नाइज ऑथर्स वाइफ, उसकी पत्नी को वो नहीं पहचानेगा। लेकिन जैसे ही शी वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम द केज,
he recognized the wife of the author and he stood on his head. तो अब खुशी में he was happy and standing on his head, तो अपने सिर के बल वो खड़ा हो जाता है उसकी पत्नी को देख करके. The wife spent 3 hours there and 3 hours, तो 3 घंटे वहाँ पर वो रहती है. And she gave बाबा एवरीथिंग, केक्स, लेमनोडे, तो वहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें उसके लिए लाई थी वो सारी चीज़ें वहाँ पर देती है उसको खाने के लिए. एंड दे इंजॉयड दे लॉट इन द ईच अदर कंपनी. तो कुछ देर बाद जब वो टाइम होने लग गया तो शी स्टार्टेड वीपिंग, तो वो रोनी शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है. एंड शी रिक्वेस्टेड द क्यूरेटर ऑफ द जू टू हैव बाबा बैक, कि वो उसको बाबा को वापस ले जाए. लेकिन जो क्यूरेटर ने कहा दैट इट वॉज नॉट इन हिज कैपेसिटी, तो ये इसकी कैपेसिटी में नहीं था. इफ़ यू रिक्वेस्टेड टू द सुपरिटेंडेंट, जो सुपरिटेंडेंट को यदि रिक्वेस्टेड की जाए, तो वो सुपरिटेंडेंट बेंगलोर में रहता था, तो वहाँ पर दोबारा से बेंगलोर में जाते हैं वो, और जो रिक्वेस्टेड करती है दैट जो पत्नी है उसकी, वो कहती है आई एंड बाबा वॉज फ्रेटिंग एट ईच अदर, कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति मतलब अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बेचैनी महसूस कर रहे हैं. तो ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन. जो सुपरिटेंडेंट था वो बड़ा ही दयालु था. एंड ही आल्सो रोट अ लेटर टू द क्यूरेटर ऑफ द जू टू मैसूर टू गिव अ केज फॉर टेकिंग बाबा, तो बाबा को ले जाने के लिए एक केज का भी वहाँ पर उसने प्रबंध किया. एंड दे टुक द लेटर टू द क्यूरेटर एंड आफ्टर दैट अ केज वॉज होस्टेड ऑन द कार, तो कार के ऊपर जो एक केज था उसको रखा गया. एंड ए स्लोली एंड केयरफुली जर्नी ऑफ 70 or 80 miles was taken for बेंगलोर. तो दोबारा से वहाँ पर लगभग 70-80 मील की जो दूरी थी वो बड़े ध्यान से वहाँ पर की गई. वहाँ पर आने के बाद they hired some of the laborers and they made an island for बाबा के लिए और ब्रूनो के लिए एक आइलैंड बनाया गया. एंड द लेंथ ऑफ आइलैंड वॉज 20 फीट, तो उसकी आइलैंड की जो लेंथ थी वो 20 फीट थी, और जो वाइड था वो लगभग 15 feet wide. Island was made for Baba, and also a pit or moat. A pit was also made 7 feet deep and 6 feet length. तो 6 फीट उसकी लेंथ थी और 7 फुट उसकी गहराई वहाँ पे बनाई गई. एंड आफ्टर अ फ्यू डेज द केज ऑफ ब्रूनो वॉज होस्टेड ऑन द आइलैंड. जो केज था उसको वहाँ पर आइलैंड पर, द्वीप पर छोड़ा गया. ए वुडन बॉक्स वॉज प्लेस्ड फॉर बाबा टू स्लीप इन. वहाँ पे एक सोने के लिए एक वुडन बॉक्स भी रखा गया बाबा के लिए. और उसके बाद वो जो भी चीज़ें बाबा के लिए पहले रखी गई थी, वहाँ पे गन थी और एक जो स्टम्प था लकड़ी का, दैट ही कंसिडर्ड एज हिज बेबी, जिसको जो ब्रूनो था वो अपना बच्चा समझता था. तो वो सारी चीज़ें जो वहाँ जब वो जू में चला गया था उसके लिए प्रिजर्व करके रखी गई थी, दोबारा से वहाँ पे ब्रूनो के लिए रखी जाती हैं. और जो उसकी वाइफ थी, she went there and spent most of the time
and now Baba was quite healthy and big, and Baba used to sleep in his lap, in her lap. तो वो उसके गोदी में वो सोता था, और उस इंटरेस्टिंग वे को भी जो यहाँ पे ऑथर है वो दर्शा रहा है, दैट इन द वे हर वाइफ his wife used to go the island, his wife used to go island, तो आइलैंड में वो कैसे वहाँ पर जाती थी उस तरीके को भी दर्शा रहा है। द ऑथर fastened a rope with a mango branch, fastened a rope, तो एक जो रस्सी है वो उसको मैंगो ब्रांच के साथ वो बांध देता है, और a loop was made on its end, तो वहाँ पर एंड में एक जो फंदा था वो बनाया जाता है। ऑथर वाइफ पुट हर फीट इन द लूप एंड another feet she pushed, and with the help of that loop she crosses the 7 feet, जो पिट थी उसको वो क्रॉस करती थी, उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लेसन है हमारा द बॉन्ड ऑफ लव, उसमें जो निक एंडरसन हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ब्रूनो एंड हिज वाइफ। तो जो पेट एनिमल हैं, हमने सुना है भाई वो डॉग ही द फेथफुल होते हैं, और यहाँ पर ये भी दर्शाया गया एंड में कि कौन कह सकता है कि जो एक पेट एनिमल है वो एक कितना ज़्यादा मतलब एक व्यक्ति के प्रति यानी कि उसकी वाइफ के प्रति कितना ज़्यादा उसकी यहाँ पे अटैचमेंट हो गई थी, और जिस टाइम के बाद भी जो वहाँ पर वो जू में चला गया उसके पश्चात भी उसने ही दैट ब्रूनो रिकॉग्नाइज हिज वाइफ एंड दे फीलिंग थ्रेटेड फॉर ईच अदर, एंड नाउ आफ्टर टेकिंग ब्रूनो बैक फ्रॉम द जू दे वर फीलिंग द लव ऑफ ईच अदर। तो वो एक दूसरे के प्रति प्रेम वो महसूस कर रहे थे। तो आशा है आपको जो आज का जो हमारी स्टोरी है द बॉन्ड ऑफ लव, उसकी जो डिटेल समरी है उसको अच्छी प्रकार से आपको पता लग गई होगी, आपको समझ में आई होगी। तो यदि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आई है और यदि आपको किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।